Namaskar, मैं संजय ग्रोडीवाल. Today we are going to study about biotechnology. This is a next level biology, I can say. Very interesting and a level next experience of biology. I would say this is advanced biology. Let's have a look of our chapter in our textbook. After that, we will proceed our video. Biotechnology is a common topic that is mentioned in both streams, where it is agriculture or biology. दोनों स्ट्रीम के बच्चे अपने से जुड़ सकते हैं. So let's get into the video. And first of all, we need to understand what is biotechnology. How do you define biotechnology? If I split it out, bio plus technology. Let me show you. Bio. It consists of two terms. Bio plus technology. Technology. Biotechnology. Bio coming from bios. That means living organisms. Living organism means microbes, your animals and plants. All are included in living organisms. First term is bio. Bio coming from bios. Bios means living organism like microbes, plants and animals. Second, technology. Some methods, I would say some methods that are associated with living organisms activity. So what is biotechnology? Biotechnology is a branch of science or biology that deals with certain techniques associated with living organism activity to get a specific product to improve human life. क्या कह रहा हूं मैं? बायोटेक्नोलॉजी वो ब्रांच है साइंस की जिसमें आपने एसोसिएट कर रहे हैं किसको? लिविंग ऑर्गेनिज्म जो एक्टिविटी करते हैं, जितनी भी एक्टिविटी होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, उन सब एक्टिविटी का आपने यूटिलाइज कर रहे हैं और साथ में कुछ टेक्निक का यूज कर रहे हैं टू गेट ए स्पेसिफिक प्रोडक्ट. आज अपने कॉमन एग्जांपल याद कर सकते हैं पोलियो वैक्सीन का. द बायोटेक्नोलॉजी बिहाइंड दैट, वहां पर बायोटेक्नोलॉजी का क्रेडिट है, वहां पर बायोटेक्नोलॉजी को क्रेडिट जाता है. यू हैव नो आइडिया, स्टिल नाउ यू हैव नो आइडिया व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी. आई जस्ट डिफाइन इट and I am going to take some examples to make you understand what is biotechnology and how biotechnology works. किस तरह से बायोटेक्नोलॉजी काम करती है, इसके लिए कुछ एग्जांपल्स मैं आपके सामने रखना चाहूंगा. तो फर्स्ट एग्जांपल इज which is taken BT cotton. BT cotton और किलर कॉटन. किलर कॉटन.
Did you ever hear about killer cotton or BT cotton? So BT comes from Bacillus. B refers to Bacillus. T refers to Thuringiensis. Let me write it. Thuringiensis. Bacillus thuringiensis. It's a kind of bacteria that has a chrysine. What I am saying? Chrysine. I'm just talking about BT cotton or killer cotton, where in BT cotton, B refers to Bacillus, whereas T refers to Thuringiensis. It's a kind of Bacillus bacteria that has chrysine in it. And chrysine is lethal for pink bollworm. This is common plant of cotton, which is propagated into Indian cuisine. Suppose it is a common plant of cotton, and pink bollworm, it's a kind of insect that causes huge damage to cotton productivity. Pink bollworm. What did I say? Pink bollworm. Pink bollworm. Let me draw a rough diagram, rough structure of this insect. This is pink bollworm that causes huge damage to cotton productivity or cotton boll. This is cotton boll. So this insect is known as pink bollworm. Pink bollworm or Helicoverpa armigera. It's a scientific name of this insect that causes damage to cotton plant. So what we are going to do? We are going to use biotechnology. With the help of biotechnology, this chrysine introduced into cotton plant. Introduced gene chrysine. Introduced chrysine into cotton plant, and this cotton plant becomes BT cotton, Bacillus thuringiensis, because we extracted chrysine from Bacillus thuringiensis and it is introduced into common cotton plant. And now this common cotton plant, it becomes BT cotton or killer cotton. And now this BT cotton or killer cotton is capable to fight with pink bollworm. Once pink bollworm try to eat this ball of cotton, cry protein, which is synthesized in entire plant body, is ingested by pink bollworm. And when cry protein enters or comes into the midgut, where it finds alkaline medium, and in alkaline medium, cry protein get activated and make the midgut busted and causes death of pink bollworm. क्या कह रहा हूं मैं? इस प्लांट के अंदर क्राइसिन अपने डाल दिया. बीटी कॉटन या किलर कॉटन के बारे में बात कर रहे हैं. बेसिलस थुरिंजिनेसिस से बना है बीटी, तो बीटी कॉटन नाम दिया गया. एक कॉमन प्लांट होता है कॉटन का, उसके अंदर अपने क्राइसिन को इंट्रोड्यूस करवाया है. क्राइसिन को अपने कहां से निकाला है, कहां से एक्सट्रैक्ट किया है? बेसिलस थुरिंजिनेसिस नाम का बैक्टीरिया होता है. क्या बता रहा हूं? ये एक बेसिलस बैक्टीरिया है और इसके अंदर जीन है. कौन सा जीन? क्राइसिन. ये क्राइसिन अपनों एक्सट्रैक्ट कर लिया इस बैक्टीरिया में से, बेसिलस थुरिंजिनेसिस में. नाउ इट इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू कॉटन प्लांट एंड इट बिकम्स बीटी कॉटन. अब इसको बोलेंगे बीटी कॉटन. अब इसके अंदर जो क्राइसिन गया है वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा किसमें? एक प्रोटीन में, और इसी से इसका नाम पड़ जाएगा क्राइजीन. से क्या बनेगा? क्राई प्रोटीन. इस एंटायर प्लांट बॉडी के अंदर अपने को क्या देखने को मिलेगा?
क्राई प्रोटीन। और जब पिंक बॉलवर्म इसको खाने के लिए आएगा तो पिंक बॉलवर्म की मिड गट के अंदर वो पहुंचेगा, कौन पहुंचेगा? क्राई प्रोटीन। इस प्लांट के हर एक पार्ट के अंदर क्राई प्रोटीन भरा हुआ है। जैसे वो इसको एनगल्फ करेगा, खाएगा, इसकी मिड गट में पहुंचेगा वो कौन? क्राई प्रोटीन, और इसकी मिड गट का पार्ट डालेगा। फर्स्ट एग्जांपल आई हैव टेकन दैट इज पीटी कोट। तो सेकंड एग्जांपल इज, नाउ आई एम गोइंग टू टेक सेकंड एग्जांपल दैट इज पोलियो वैक्सीन। पोलियो वैक्सीन, as you know very well, polio is caused by polio virus, but we already prepared a polio vaccine which is given to younger stage, under 5, 2 बूंद जिंदगी की, सब जानते हैं। तो हाउ पोलियो वैक्सीन वर्क्स, कैसे काम करती? नाउ लेट मी शो। दिस इज पोलियो वायरस, इट्स जेनेटिक मटीरियल। This polio virus get immobilized. Polio virus get immobilized. Immobilized means get weaken or dead. इनको मारकर या इनको डेड करके अपने काम में ले सकते हैं। एंड and prepare polio vaccine. This is polio vaccine. It is nothing but having immobilized polio virus in it. अब तुम लोग कहोगे कि जब इसके अंदर पहले से पोलियो वायरस है तो ये तो कोज कर देगा, ये तो पोलियो कोज करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। वी आर यूजिंग इमोबिलाइज्ड वायरस, वी आर नॉट यूजिंग डायरेक्टली पोलियो वायरस, वी ऑलरेडी मेड देम इमोबिलाइज्ड। जितना डैमेज वो कोज कर सकते हैं उतना डैमेज कोज नहीं करेंगे, और फिर उसको एज ए वैक्सीन अपने यूज करेंगे। जब बच्चे को इसको पिलाएंगे अपने, तो उसकी बॉडी में इमोबिलाइज्ड जो वायरस है, पोलियो के वायरस, वो एंटर करेंगे। उससे क्या होगा? आपने देखा होगा फीवर चढ़ता है बच्चे को जब भी उसको पोलियो वैक्सीन या जितने भी दूसरे डीपीडी, बीसीजी के इंजेक्शन लगाते हैं, तो उसके बाद उसको हल्का बुखार चढ़ता है। तो वो एक सिम्टम है, वो एक साइन है जिससे पता लगता है कि पोलियो वैक्सीन और एनी काइंड ऑफ वैक्सीन इज वर्किंग। तो वहां पर वर्क क्या हो रहा है? जैसे एंटर करते हैं ये पोलियो के वायरस, इमोबिलाइज्ड पोलियो के वायरस, WBC एक्टिव होती है, अपना इम्यून सिस्टम है वो बूस्ट होता है, और इम्यून सिस्टम क्या काम करता है? इट स्टार्ट्स मेकिंग एंटीबॉडीज अगेंस्ट दीज पोलियो वायरस, इमोबिलाइज्ड वायरस, और उनको किल कर देंगे। और इन फ्यूचर डेज कभी भी वो पोलियो के वायरस तो घूमते रहते हैं, इनको खत्म करना पॉसिबल नहीं है, इनको मैनेज किया जा सकता है। अब आसपास फिर से घूम रहे हैं, ये घूमते रहेंगे तो क्या होगा? वो एंटर करने की कोशिश करेंगे, ऑलरेडी अपनी बॉडी के अंदर उनके खिलाफ, उनके अगेंस्ट बॉडी प्रिपेयर हो चुकी है, एंटीबॉडीज प्रिपेयर हो चुकी है, वो उनको किल कर देगी। तो इस तरह से पोलियो वैक्सीन वर्क्स, पोलियो वैक्सीन काम करती है। तो इस तरह से जितने भी वैक्सीन तैयार की जाती है, दैट गिव्स अस एक्टिव इम्यूनिटी, अपने को एक्टिव इम्यूनिटी मिलती है उनसे, क्योंकि बॉडी को एक्टिव होना पड़ता है, बॉडी की जो इम्यून सिस्टम उसको एक्टिव होना पड़ता है। ठीक है, तो पोलियो वैक्सीन भी किसका प्रोडक्ट है? वो बायोटेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट है। ये सारा काम अपने बायोटेक्नोलॉजी के अंडर ही कर पाते हैं। तो 2 एग्जाम्पल अपने देख लिए। फर्स्ट वन कौन सा था? अपना था बीटी कॉटन फॉर किलिंग पिंक बॉलवर्म, और दूसरा है पोलियो वैक्सीन। वी आर गोइंग टू टेक थर्ड एग्जाम्पल, दैट इज इंडस्ट्रियल इंसुलिन। नाम सुना होगा आपने। इंसुलिन इज ए हार्मोन, insulin is a hormone which is synthesized in our body, you can say in pancreas, beta cell of pancreas, that regulate our body sugar level. But in some cases insulin is not synthesized in a sufficient amount in our body. In that condition we can say the patient is suffering from diabetes,
अपने बोलते हैं उसको डायबिटीज हो गया है, उसको शुगर हो गया इन जनरल लैंग्वेज। क्यों हो गया है? क्योंकि इंसुलिन बना नहीं पा रहा है अपना पैनक्रियाज की बीटा सेल। तो इस कंडीशन में यू हैव टू प्रिपेयर इंडस्ट्रियल इंसुलिन। इट इज नथिंग बट ए टाइप ऑफ प्रोटीन and every protein is expressed by a certain gene. What we are going to do? We are going to extract beta cell or beta cell gene that synthesized, that is responsible for making, for expressing the insulin protein. So अपने वो क्या काम करेंगे? जो पैनक्रियाज था, पैनक्रियाज में से अपने क्या निकाल लेंगे? बीटा सेल का जीन निकाल लेंगे जो कि सिंथेसाइज कर सकता है इंसुलिन को। उसको इंजेक्शन की फॉर्म में वो मार्केट में अवेलेबल होता है, वो डायरेक्टली अपने पेशेंट को लगा सकते हैं। इसके पीछे भी क्या है? बायोटेक्नोलॉजी। द होल क्रेडिट गोज टू बायोटेक्नोलॉजी। पहला एग्जाम्पल क्या लिया आप लोगों ने? बीटी कॉटन। दूसरा एग्जाम्पल क्या लिया आप लोगों ने? दूसरा एग्जाम्पल था पोलियो वैक्सीन। और थर्ड एग्जाम्पल है इंडस्ट्रियल इंसुलिन। ओके, फोर्थ एग्जाम्पल और बता देता हूं आपको। फोर्थ एग्जाम्पल फायर फ्लाई, जुगनू जिसको बोल देते हैं। रात को इमिट करते हैं रोशनी को, जगमगाते हैं। क्यों जगमगा पाते हैं? हाउ इज इट पॉसिबल? कैसे संभव है? फायर फ्लाई इमिट करते हैं लाइट ड्यूरिंग द नाइट व्हेन दे फ्लाई। जब वो उड़ते हैं, फ्लाइट करते हैं, तो लाइट जनरेट होती है। कैसे? लाइट इमिट करते हैं। वाकई में उसके पीछे क्या है? ए प्रोटीन नेम्ड ल्यूसीफेरिन। ल्यूसीफेरिन, इट्स ए काइंड ऑफ प्रोटीन एक्सप्रेस्ड बाय ए सर्टेन जीन इन फायरफ्लाई। जुगनू के अंदर एक जीन होता है, वो जीन ल्यूसीफेरिन प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है। उसी ल्यूसीफेरिन की वजह से वो लाइट को इमिट कर पाता है। तो इसका एप्लीकेशन क्या है? इसका एप्लीकेशन अपने यूज करते हैं बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू। अपने क्या काम करेंगे? वी एक्सट्रैक्ट दिस जीन फ्रॉम दिस फायरफ्लाई। वी एक्सट्रैक्ट दिस जीन फ्रॉम फायरफ्लाई एंड इंट्रोड्यूस्ड इन प्लांट सेल। क्या बात कर रहे हैं? अपने प्लांट के अंदर इसको क्या कर देंगे? इंट्रोड्यूस करवा देंगे प्लांट सेल के अंदर। फायरफ्लाई से वो जीन निकाला जो रिस्पॉन्सिबल है ल्यूसीफेरिन के लिए, और उसको इंट्रोड्यूस करवा दिया किसके अंदर? प्लांट सेल के अंदर। अब प्लांट जो इससे जनरेट होंगे, जो प्लांट प्रोपिगेट होंगे, उनसे क्या इमिट होगी? इससे है लाइट इमिट होगी। तो स्ट्रीट लाइट का काम खत्म हो गया। स्ट्रीट लाइट जो नियर बाय द रोड अपने लगाते हैं, उसकी जगह अपने प्लांट्स लगा देंगे। वो प्लांट जिनके अंदर ल्यूसीफेरिन वाला जीन उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया। रात के टाइम वो क्या करेंगे? रोशनी इमिट करेंगे, सड़कें हैं वो जगमगा उठेंगी। स्ट्रीट लाइट का खर्चा खत्म। ये एडवांस्ड बायोलॉजी है। क्या बताया मैंने? यहां पर प्लांट्स हैं, प्लांट्स हो गए जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स। ये भी आगे पढ़ेंगे। अपने जीन का मॉडिफिकेशन किया है, एक नया जीन इंसर्ट करवा दिया किसके अंदर? प्लांट सेल के अंदर। दे स्टार्ट इमिटिंग द लाइट। ये जो प्लांट है, अब ये जो जीन के अंदर उन्होंने इंसर्ट किया अपना डिजायर्ड जीन, ऐसा जीन जो कि ल्यूसीफेरिन सिंथेसाइज कर रहा है, ल्यूसीफेरिन को डिकोड कर रहा है, वो वाला जीन अब इन प्लांट्स के अंदर गया है। दे स्टार्ट इमिटिंग लाइट। इन प्लांट्स को अब बोलेंगे जीएमपी, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट। जेनेटिक मैनिपुलेशन कर दिया उन्होंने, अंदर जीनों की गड़बड़ी कर दी है, इस वजह से ये जीएमपी है। ये भी आगे पढ़ेंगे, ये एप्लीकेशन में आएगा। तो इस तरह से आप देखते हैं कि डे बाय डे अपने इंप्रूव हो रहे हैं विद बायोटेक्नोलॉजी, और ये फ्यूचर साइंस है। आगे और बहुत कुछ होना बाकी है इसके अंदर। तो धीरे धीरे अपने इसी चैप्टर के अंदर देखेंगे कि किस तरह से अपने डिजायर्ड जीन को लेते हैं, वेक्टर काम में लिया जाता है। कुछ एंजाइम भी जिनको अपने मॉलिक्यूलर सीजर्स बोलते हैं, वो भी जीन की काट छांट में उनको मैनिपुलेट करने में काम में आता है, वो भी पढ़ेंगे। होस्ट सेल के बारे में पढ़ेंगे, क्या होता है, किस तरह से कल्चर किया जाता है होस्ट सेल का, ट्रांसफॉर्म्ड सेल क्या होती है, और पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होती है, सब अपने पढ़ने वाले हैं। और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, जिस तरह वाइन प्रोडक्शन की बात करें, अपने यीस्ट काम में आता है, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी जिसका साइंटिफिक नेम होता है। तो वहां पर यीस्ट के अंदर दो तरह के एंजाइम होते हैं, एक जाइमेज होता है, दूसरा इन्वर्टेज होता है।
दोनों एंजाइम काम करते हैं किसके ऊपर, सुक्रोज के ऊपर, चीनी के ऊपर, जिसको अपने बोलते हैं जनरली क्या बोल देते हैं, मोलेसिस बोलते हैं, उसको शीरा बोल देते हैं, मोलेसिस या शुगर सिरप बोल देते हैं। उसको ट्रीट करवाते हैं किसके साथ, यीस्ट के साथ। फंगस होता है, यूनिसेलुलर फंगस है, वो अपने काम में लेते हैं। उसमें दो एंजाइम होते हैं, सुक्रोज के ऊपर काम करने वाले दो एंजाइम होते हैं, एक होता है इन्वर्टेज और दूसरा होता है जाइमेज। दोनों मिलकर उस शुगर को, जो कि ग्लूकोज और फ्रैक्टोज में तोड़ते हैं पहले, और फिर ग्लूकोज और फ्रैक्टोज को बदल डालते हैं किसके अंदर, अल्कोहल। फाइनली अपने को मिल जाता है अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, दैट इज वाइन। तो वाइन प्रोडक्शन के अंदर भी अपने को बायोटेक्नोलॉजी की मदद लेनी पड़ती। तो डेली रूटीन लाइफ के अंदर, कमर्शियल लेवल पर, डोमेस्टिक लेवल पर, हर जगह बायोटेक्नोलॉजी है। इस तरह से फायरफ्लाई ल्यूसीफेरिन की बात की, सिलेक्टेबल मार्कर जीन होते हैं एक तरह से। जिस तरह से ल्यूसीफेरिन की बात कर रहा हूं मैं, ल्यूसीफेरिन एक तरह का मार्कर जीन है, ये मार्क करने के काम में आता है। जुगनू के अंदर या फायरफ्लाई के अंदर जहां पर ल्यूसीफेरिन होता है, वही अपने को कोज करता है इमिटिंग के लिए। जो इमिटिंग कोज होगी किसके अंदर, फायरफ्लाई के अंदर, उसके पीछे किसका हाथ है, ल्यूसीफेरिन जीन का। ल्यूसीफेरिन जीन है वो ल्यूसीफेरिन प्रोटीन बनाएगा और वही लाइट इमिटिंग का रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होता है। तो वही अपनों ने किस में डाल दिया, इस तरह से प्लांट के अंदर डाल दिया। तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारे एग्जाम्पल लिए जा सकते हैं। किलर कॉटन अपनों ने बता दी, बीटी कॉटन, जो कि फाइट करता है किसके साथ में, पिंक बॉल वर्म, हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा। तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल है जिनको अपने को डीप स्टडी करना है, जिनको अपने और आगे स्टडी करेंगे। तो 4 एग्जाम्पल आज अपन ने लिए दैट शोज हाउ बायोटेक्नोलॉजी वर्क्स, किस तरह से बायोटेक्नोलॉजी काम करती है। मैं समझता हूं कि थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा कि बायोटेक्नोलॉजी होता क्या। बायो मीन्स बायोस, विच मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायो का मतलब क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अब इन सब के अंदर, इन 4 एग्जाम्पल्स के अंदर वी आर यूजिंग microbes, we are using plants, we are using animals. So all living being or all living organism are being used in biotechnology associated with some techniques or technology. That is biotechnology. तो यहां पर जितने भी अपने एग्जाम्पल सेट किए हैं वो सब के सब देन है, प्रोडक्ट है किसकी, बायोटेक्नोलॉजी की। So enough for today. I hope I make you understand what is biotechnology. This is a general introduction of biotechnology. In this lecture video, we have learned that how biotechnology is applied in our daily routine life. छोटी चीजें हैं जिनके ऊपर बायोटेक्नोलॉजी है वो अप्लाई हो रही है। एक बार फिर से रिवाइव करवा देता हूं। हमने 2 ही चीजें पकड़ी थी। फर्स्ट वन इज बायोस, दैट लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एंड सेकंड वन इज टेक्नोलॉजी, सम टेक्निक, सम मेथड that are being used in daily routine life associated with लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो भी एक्टिविटी होती है उनका जो मेटाबॉलिज्म है, क्या होता है मेटाबॉलिज्म बॉडी के अंदर, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर, चाहे वो यूनिसेलुलर हो चाहे मल्टीसेलुलर हो, सब बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ वाइटल एक्टिविटी चलती है जिसमें प्रोटीन बनता है, स्पेसिफिक प्रोटीन तैयार होता है, स्पेसिफिक प्रोडक्ट अपने को देखने को मिलते हैं। वही स्पेसिफिक प्रोडक्ट अपने को चाहिए ह्यूमन वेलफेयर के लिए, ताकि इंसान है वो तरक्की कर पाए हर स्तर के ऊपर। जब उसका हेल्थ है, हेल्थ के इश्यू नहीं रहेंगे तो वो अच्छे से काम कर पाएगा हर एक फील्ड के अंदर। जब डेली रूटीन लाइफ की बात आती है, चाहे आप दही क्यों न जमा रहे हो, सेटिंग ऑफ कर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। वहां पर भी बायोटेक्नोलॉजी का अपने एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं। उसमें LAB बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया या लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया दैट हेल्प्स इन सेटिंग ऑफ कर्ड। वो जो दूध के अंदर लैक्टोज शुगर है उसको कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, लैक्टिक एसिड में। वहां पर भी बायोटेक्नोलॉजी, क्योंकि वहां माइक्रोब्स यूज हो रहे हैं, वो मेथड है। इसी तरह से जब अपने इंसुलिन तैयार कर रहे हैं तो बड़े बड़े बायोरिएक्टर काम में लेते हैं। कमरे जितने बड़े बायोरिएक्टर होते हैं, बायोरिएक्टर का मीन्स है कंटेनर होते हैं, उसके अंदर माइक्रोब्स, और मोस्टली जो अपने यूज करते हैं, जिस माइक्रोब्स का अपने यूज करते हैं एज ए होस्ट सेल, आगे पढ़ेंगे अपने, वो होती है इकोलाई। इकोलाई जो बैक्टीरिया है उसकी बैक्टीरियल सेल को अपने काम में लेते हैं एज ए होस्ट सेल। होस्ट सेल क्या होती है, जिसके अंदर अपने फॉरेन जीन या डिजायर्ड जीन, जिस तरह से अपनों ने पढ़ा किसके अंदर, बीटी कॉटन के अंदर डिजायर्ड जीन कौन सा था, फॉरेन जीन कौन सा था, क्राइजीन, which was extracted from Bacillus thuringiensis।
एंड इंसर्टेड इन कॉटन प्लांट। तो वो जो फॉरेन जीन था, डिजायर्ड जीन, उसकी जब मल्टीपल कॉपीज तैयार की जाती है तो उसके लिए होस्ट सेल का होना बड़ा जरूरी है। वो आगे अपने डीप स्टडी करने वाले हैं। इसी तरह से अपने बात करते हैं बीटी कॉटन के अलावा किसकी बात की थी अपने, पोलियो वैक्सीन की बात की। वहां पर भी माइक्रोब्स काम में आ रहे हैं। वायरस जो वाकई में कोज कर रहा है क्या, पोलियो वायरस जो कोज कर रहा है क्या, पोलियो, उसी का अपने यूज कर रहे हैं, उसी का प्रोडक्ट या खुद उसी पोलियो वायरस को अपने इंजेक्ट करवा रहे हैं इमोबिलाइज्ड फॉर्म में। किसके अंदर, बच्चे के बॉडी के अंदर, जिससे बच्चे के अंदर एक्टिव इम्यूनिटी डेवलप हो पाए और बच्चा भविष्य में कभी भी पैरालाइज ना हो। पोलियो वैक्सीन उसको इसी वजह से दी जाती है कि भविष्य में उसको कभी भी पोलियो ना हो। पोलियो है वो अप्रूव कर दिया गया है, इसका मतलब ये नहीं कि पोलियो के वायरस खत्म हो गए, अभी भी घूमते हैं लेकिन इम्यूनिटी डेवलप होगी। इसी तरह से अपने फायर क्राई का एग्जाम्पल लिया था, इसी तरह से इंसुलिन का एग्जाम्पल अपने लेते हैं। ये सभी के सभी प्रोडक्ट हैं, छोटे छोटे सेल से, छोटे छोटे माइक्रोब से, उनको अपने डेली यूज में काम में ले रहे हैं और साथ में कुछ टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं। तो टेक्निक के साथ में लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, उन दोनों का जो इंटीग्रेशन है, समावेश है, वही बायोटेक्नोलॉजी है। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में अपने प्रिंसिपल पढ़ेंगे, अपने मेथड पढ़ेंगे, जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात होगी, क्या होता है वो नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में अपने देखेंगे। इन नेक्स्ट लेक्चर वीडियो वी आर गोइंग टू डीप स्टडी अबाउट बायोटेक्नोलॉजी। सो टिल देन बाय एंड कीप वॉचिंग।